سولر صارفین کے لیے بری خبر ہے۔ وفاقی حکومت کا نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کو ختم کرنے کا حتمی فیصلہ۔ نیٹ میٹرنگ کی بجائے نیٹ بلنگ فارمولا نافذ العمل کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ نیپٹا نے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے خاتمے کے لیے باضابطہ طور پر ورکنگ شروع کر دی ہے۔ نیٹ بلنگ فارمولا کے تحت صارفین کا امپورٹ شدہ یونٹس پر قومی ٹیرف نافذ ہوگا۔ سولر سسٹم سے ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس پر 27 روپے فی یونٹ ریٹ لگایا جائے گا۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس میں بجلی کی قیمت کا تعین کیا جائے گا۔ قومی ٹیرف کی بنیاد پر بننے والے بل کو ایکسپورٹ شدہ یونٹس کے بل سے منفی کیا جائے گا۔ اضافی بل کی صورت میں صارفین کو ادائیگی کرنا لازمی قرار دی جائے گی۔ اس وقت نیٹ میٹرنگ سے صارفین کو بلوں میں اربوں روپے کا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کی نئی پالیسی صرف نئے کانٹریکٹ کرنے والے صارفین پر لاگو ہوگی۔ 7 سالہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہونے پر دوبارہ کانٹریکٹ نئی پالیسی پر ہی کیا جائے گا۔ سولر صارفین کے لیے بری خبر ہے۔ وفاقی حکومت کا نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کو ختم کرنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا۔ نیٹ میٹرنگ کے بجائے نیٹ بلنگ فارمولا نافذ العمل کرنے کا پلان تیار کیا گیا۔ نیپٹا نے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے خاتمے کے لیے باضابطہ طور پر ورکنگ شروع کر دی ہے۔ نیٹ بلنگ فارمولے کے تحت صارفین کا امپورٹ شدہ یونٹس پر قومی ٹیرف نافذ ہوگا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میاں منظور وٹو انتقال کر گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میاں منظور وٹو انتقال کر گئے۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میاں منظور وٹو انتقال کر گئے ہیں اور ان کے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور میاں منظور وٹو انتقال کر گئے ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسن علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو، جو کہ گزشتہ کافی عرصے سے علیل تھے، وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تاہم خاندانی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جنازے کا اعلان جو ہے بعد میں کیا جائے گا۔ میاں منظور احمد وٹو جو ہیں وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے اور گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک بھی رہے، جبکہ میاں منظور احمد وٹو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بھی فائز رہے، جبکہ خاندانی ذرائع کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنازے کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ فی الوقت جو ہے جنازے کا اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ علاج کی غرض سے میاں منظور احمد وٹو کو بیرون ملک بھی لے جایا گیا تھا، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو سکے۔ تاہم اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ جی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے ہیں طویل علالت کے بعد، اور سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میاں منظور وٹو انتقال کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ سینئر رہنما تھے یہ پیپلز پارٹی کے، جو کہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ بتایا کیا کہ انہیں بیرون ملک بھی لے جایا کیا، مگر ان کی طویل علالت کے بعد وہ انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم کے جنازے کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ جی حسن، بتائیے گا۔ جی، جنازے کا اعلان جو ہے وہ خاندانی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ میاں منظور احمد وٹو، جو کہ اب سے کچھ دیر قبل طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں، ان کے جنازے کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ تاحال جو ہے وہ جنازے کے حوالے سے خاندانی ذرائع کی جانب سے کوئی بھی اعلان جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ میاں منظور احمد وٹو جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے کو کافی دیرینہ تھی، اور گزشتہ کئی ادوار سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اور تاہم علالت کے باعث جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اور ذرائع کی جانب سے، خاندانی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بیرون ملک بھی علاج کے لیے لے جایا گیا، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو سکے۔ جی بیرون ملک بھی لے جایا گیا لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو سکے۔ آپ کو آگاہ کریں افسوسناک خبر سے کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میاں منظور وٹو انتقال کر گئے ہیں، اور خاندانی ذرائع کی جانب سے ابھی جنازے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا، اور بعد میں کیا جائے گا اعلان۔ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میاں منظور وٹو جو ہیں وہ طویل عرصے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک تھے اور سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ گراں قدر خدمات انجام دی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور اب اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے ہیں طویل علالت کے بعد۔ حسن علی نے جیسا کہ بتایا کہ ان کو بیرون ملک بھی لے جایا گیا، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو سکے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں، اور خاندانی ذرائع کی جانب سے ابھی جنازے کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ مرحوم کے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वटू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी तवील अरसे से मुंसलिक थे। गिरां कदर खिदमात अंजाम दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला भी रहे और अब अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। तवील इलालत के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे मियां मंजूर वटू, जो कि इंतकाल कर गए हैं और मरहूम के जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। जी हाँ, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ये मरहूम के जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। हसन अली हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताएगा कि इलाज के लिए उन्हें बाहर भी भेजा था, किस मर्ज में मुब्तला थे वे? जी बिल्कुल, मियां मंजूर अहमद वट्टू जो कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से अलील थे, जो कि साबिक वज़ीर आला भी रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक भी रहे हैं, मुंसलिक थे। वो उनको इलाज के लिए जो है बैरून मुल्क भी ले जाया गया, लेकिन वो जब सेहत याब नहीं हो सके और अब से कुछ देर कबल जो है वो ख़ानदानी ज़राए की जानिब से ये कंफर्म किया गया है कि उनका इंतकाल जो है वो हो चुका है। मियां मंजूर अहमद वट्टू जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरीना साथियों में शुमार इनका होता था, जबकि वजीर आला पंजाब भी रहे हैं और अब से कुछ देर कबल जो है इनका इंतकाल हुआ है। ताहम खानदानी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जनाजे का ऐलान जो है वो बाकायदा तौर पर बाद में किया जाएगा। ठीक है, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। अभी ख़ानदानी ज़राए से इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया और बाद में जनाजे का ऐलान किया जाएगा। ये अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। मरहूम के जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। तवील अरसे से बीमार थे और उन्हें बैरून मुल्क भी इलाज के लिए भेजा गया, मगर वो सेहत याब नहीं हो सके। गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और अब ये अफसोसनाक खबर सामने आई है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं और मरहूम के जनाजे का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। अभी ख़ानदानी ज़राए से इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। ये पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे मियां मंजूर वट्टू, जो कि इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी अरसे से बीमार थे और इन्हें बाहर भी भेजा गया इनको इलाज के लिए, मगर वो सेहतयाब नहीं हो सके। जी, ये इलाज के लिए बाहर भेजा गया लेकिन वो सेहत याब नहीं हो सके और तवील इलालत के बाद अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे। गिरां कदर खिदमात अंजाम दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बदस्तूर बरकरार है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 251 रिकॉर्ड की गई। गलबाटू 328, इकबाल टाउन में QI की शरह 287 रिकॉर्ड की गई। बरकी रोड 286, फेज 6 DHA में शरह 278 रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन 216 DHA फेज 5 में शरह 214 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर में आलूदगी का राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 291 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो गुलबर्ग 2 के अतराफ में आलूदगी की शरह 328 रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन 287 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। बरकी रोड 286 DHA फेज 6 के अतराफ में आलूदगी की शरह 278 रिकॉर्ड की जा रही है। जोहर टाउन 216 DHA फेज 5 के अतराफ में 214 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। बेतिया रोड 211 जबकि अस्करी टन के अतराफ में इस वक्त AQI 200 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम खुश्क है, फ़िज़ाई आलूदगी भी बरकरार है। आइंदा चंद रोज तक मौसम इसी तरह से रहने की पेशनगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 20 दिसंबर तक शहर में खुश्क सर्दी और खुश्क मौसम का राज जो है वो बरकरार रहेगा। उसके बाद जो है वो मौसम में तब्दीली देखने में नजर आएगी। सर्दी और खुनकी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में नजर आएगा और मुल्क के बलाई इलाकों में भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशनगोई की जा रही है। लेकिन फिल वक्त अगर लाहौर के हवाले से बात कर लीजिए तो लाहौर में मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा। धुंध का राज भी सुबह और रात के औकात में बरकरार रहेगा, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी भी बरकरार रहने की पेशनगोई जो है वो माहिरीन की जानिब से की जा रही है। माहिरीन शहरियों को बारहा खबरदार कर रहे हैं कि बगैर मास्क के घरों से ना निकलें। कोशिश करें कि रात के औकात में अपनी बैरूनी सरगर्मियों को कम कर दें। सुबह और रात के औकात में सफ़र से भी गुरेज करने की हिदायत की जा रही है। फोक लाइट्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ शहरियों से ये अपील की जा रही है कि सफ़र जो है वो एहतियात से करें और इसी के साथ साथ जो बच्चे हैं उनका भी खास ख्याल रखें और दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद करते रहें। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 90% है और इस वक्त 10 किलो
किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मौसम इसी तरह से खुश रहेगा। आज भी शहर लाहौर में बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। पर मार्केट में अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में उतार चढ़ाव। नए चावल की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। नए चावल की कीमत 310 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के ओपन मार्केट में मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसके अलावा जो शहर लाहौर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों और इसके अलावा जो करीबो जवार के छोटे बड़े शहर की होल सेल मंडियाँ हैं उनमें भी नए चावल की कीमतों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। 10 रुपये इजाफे के बाद जो नए चावल की कीमत है वो परचून में इस वक्त 310 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है, जबकि मजमूई तौर पर 25 किलोग्राम थैले की कीमत की अगर हम बात करें तो उसमें 250 रुपये का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और उसके बाद ये 7,750 रुपये का अब होल सेल मंडी के अंदर सेल होगा। इसके अलावा जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो मुस्तहकम हैं और जो आटे की कीमतें हैं वो भी कदरे ओपन मार्केट में ज़्यादा हैं। इस हवाले से शहरी जो हैं वो शिकवा कना भी हैं। शहरी ये कहते हैं कि नई फसल के आने पर जो अजनास हैं वो सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इसके बरक्स शहर के ओपन मार्केट और होल सेल मंडियों में देखा जा रहा है कि चावल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का जो रुझान है वो बरकरार है और उसमें मज़ीद इजाफा वक्त गुजरने के साथ साथ होता जा रहा है। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को कोट लखपत डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया गया है। कोट लखपत डिवीजन से कान्हा डिवीजन की तश्कील नौ करने पर काम शुरू कर दिया गया है। अलहदा डिवीजन के साथ साथ 6 नई सब डिवीजन भी बनाई जाएंगी। तफसीलात जान लेंगे शाहिर नदीम सिपरा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से कोट लखपत डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया गया और यहाँ से कान्हा डिवीजन जो है वो नई बनाई जाएगी और कान्हा डिवीजन के ज़ेरे इंतज़ाम 6 नई सब डिवीजन जो हैं उनको बनाने पर भी काम शुरू किया गया है। बुनियादी तौर पर कोट लखपत डिवीजन में सार्फिन की तादाद बढ़ गई थी और जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं उनको अटेंड करना मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए एक नई डिवीजन और 6 सब डिवीजन बनाने का फैसला किया गया। जो नई सब डिवीजन बनाई जा रही हैं उनमें सूफियाबाद, गौसिया पार्क और हल्लो की सब डिवीजन शामिल है। इसी तरह कान्हा सब डिवीजन, सोयासल और रोड़ा जो सब डिवीजन है इस पर काम किया जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि आइंदा 1 या 2 माह के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी मिलने पर नई कान्हा डिवीजन बना दी जाएगी और नई अफसरान की तकर्री भी कर दी जाएगी। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। 13,500 स्कूल टीचर्स इंटर्न्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी। इससे कबल 12,500 STIs पहले ही मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के पास STIs की मौजूदा तादाद 25,000 पर पहुंच गई है। STIs मुतल्लिका स्कूल की वेबसाइट से ऑर्डर्स वसूल कर सकते हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद, बताइएगा। जी, स्कूल टीचर रिटर्न जो कि जिनकी तादाद 25,000 में पहुँच गई, इससे कबल 12,500 और 13,500 के करीब स्कूल टीचर रिटर्न रख लिए गए और उनके ऑर्डर्स भी जनरेट कर दिए गए और इनको अहकाम जारी किए गए कि कल जो है वो अपनी ज्वाइनिंग जो है वो फौरी तौर पर स्कूल में करें और मुतल्लिका स्कूल की वेबसाइट पर जो है वो ऑर्डर्स अपलोड भी कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। सुबह वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी और आशुक हसन किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्मा बुखारी ने पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों बारे आगाह किया। मेहनत कशों को 3600 फ्लैट्स तामीर करके दे रहे हैं। अस्मा बुखारी की जानिब से कहा गया, मज़ीद उनका क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। जो है वो अच्छे कामों के लिए कोट किया जा रहा है और इससे मैं समझती हूँ कि बेहतर चीज़ पंजाब के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए हो नहीं सकती। जो काबीना के चंद अहम फैसले हैं उसमें एक तो जो इंक्वायरीज़, आपको पता है कि किसी भी अफसर के ख़िलाफ़ अगर कोई इल्ज़ाम लगता था तो उसकी इंक्वायरियाँ जो हैं वो साल हर साल चलती थी और एजेंडा भी ये था कि जी 2 साल टाइम होता है इंक्वायरी का, इसको एक्सटेंड करने की इजाज़त दे दें। तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये हुक्म दिया कि एक्सटेंड क्यों करना है, 3 महीने के अंदर अंदर जो है इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि जो सज़ावार है उसको सज़ा मिल सके और जो बेगुनाह है वो इस अज़ियत से जो है वो छूट सके कि उसने कोई गलत काम किया है। उसके साथ साथ जो ये पंजाब के अंदर दूसरा IT सिटी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रावलपिंडी के अंदर जो है वो बनाने की मंजूरी दी है। पहला IT सिटी इंशाल्लाह ताला जो लाहौर के अंदर बन रहा है, दूसरा इंशाल्लाह ताला पिंडी के अंदर बनेगा। और फिर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जिस तरह से आप बड़े शहरों के अंदर, बड़े मुल्कों के अंदर
آپ ٹریفکس کا نظام دیکھتے ہیں، اب جدید ترین لائٹس کے ساتھ، جس میں پیڈسٹرینز کے لیے جو ہے وہ بٹن، جیسے آپ نے دیکھا ہے دنیا میں بٹن دبا کے وہ اپنے لیے جو ہے وہ ٹریفک کھڑی ہوتی ہے اور پیڈسٹرینز جو ہیں وہ اپنے لیے جگہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح کا جو نظام ہے وہ انشاءاللہ تعالی لاہور کے اندر بڑی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ زیبرا کراسنگ کو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو بنانا اور اس کو محفوظ کرنے کی انسٹرکشنز جاری کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحانات کی شفافیت کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے پنجاب کے اندر امتحانی نظام جو ہے وہ بہتر ہے، تمام صوبوں سے بہتر ہے، اور پنجاب میں اس طرح کی کوئی بڑی وائلیشن کی خبر آپ نے کبھی نہیں سنی کہ جہاں پہ سینٹر کے سینٹر بک جاتے ہوں، یا جہاں پر جو ہے وہ کوئی امتحانی نظام کے اندر جو ہے تبدیلی کرنے کا چانس ہو۔ اس کے باوجود چیف منسٹر صاحبہ کا یہ کل کابینہ کا جو یہ فیصلہ ہے کہ ایک پورا علیحدہ سے انڈیپینڈنٹ نظام بنایا جائے گا امتحانات لینے کے لیے، جس کا سکول سے اور اس کی سکول کی کونسل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بچے خود اپیئر ہوں گے اور ایک ٹرانسپیرنٹ نظام کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہولی فیملی ہسپتال ہے فیصل آباد، اس کے اندر جو مسنگ آلات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ مدر اینڈ چائلڈ جو مری کا ہسپتال تھا اس کو جنرل ہسپتال بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ گجرانوالہ میں جو ہے وہ نیا کارڈیولوجی ہسپتال بننے جا رہا ہے۔